There's something that I recently experienced myself and I really want to address it out. And that thing is emotional eating or stress eating. Hello everyone and welcome to Flaps to Apps. It's 21st August and I'm back from my trip. और आज की वीडियो में मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ. सो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो एंड तक देखना प्लीज़. इफ़ यू थिंक आई एम सेइंग समथिंग राइट एंड ट्रू एंड ऑनेस्ट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. उस तक ज़रूर पहुँचाना जिस बंदे को देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आई नो कि हो सकता है काफ़ी लोग इसे रिलेट ना करें, क्योंकि ऑब्वियस बात है सबको ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है. जिसको है आई वांट कि उस तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत हिम्मत चाहिए चीज़ें बाहर बोलने के लिए. एंड अच्छी लगे बात तो ज़रूर शेयर करना. Emotional eating or stress eating, and to be honest, unintentionally or intentionally, it's been a really big part of my life, a major factor of my bad food habits. I hope many of you relate to this, and I know we don't talk about this a lot. It's really something that happens to everyone, no matter what your weight is. This happens to everyone. I learned something, that we don't just eat to satisfy our physical hunger. Many of us turn towards food for comfort and stress relief, to reward ourselves. In such cases, we usually indulge in junk food. It's a vicious cycle, in fact. And I've studied about this. For an fact, I know that only few will relate to this. You know why? Because for others, it's not an important factor. It's not going to impact their life. It's not impacting their life a lot. But for someone who is obese, जो मोटा है, जो गुजरता है इस चीज़ों से, उसके लिए it's very impactful. It's very harmful for such person. Coming to my story, what happened with me and how this vicious cycle work. Actually, I was back from my trip. Something really disturbing happened with me. I really got upset. There was a feeling inside me after secluding from everyone and sitting by myself. There was a feeling inside me. There was a voice inside me कि यार केपी खा ले, कुछ नहीं होता है. तू कर रहा है मुझे पता है, सही बात है, अच्छी बात है, बट तू खा ले भाई, कुछ नहीं होता है. थोड़ा सा खा ले, तेरे को अंदर अच्छा लगेगा. Because it's been a childhood problem with me, more or less. I tried my best to fight it. बट उस समय ना पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इतना तुम्हारे अंदर वो एक ओवरवेलमिंग अर्ज आ जाती है कि यू जस्ट वांट टू हैव समथिंग टू कंफर्ट योर सेल्फ, रिलीफ योर स्ट्रेस, बिकॉज यू बीन डूइंग दैट फॉर योर लाइफ. इट्स बाउंड टू हैपन विथ यू. एंड एट दैट पॉइंट व्हेन इट हैपेंड टू मी, आई रियलाइज दिस एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं, मैं नहीं खाऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊँगा. चाहे कोई कैसा भी मुझे बोले, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा इस चीज़ में. बट आई डिड एंड आई एम सॉरी कि मेरे से हुआ ये कि आई फेल इनटू दिस ट्रैप ऑफ इमोशनल ईटिंग एंड आई डिड ईट समथिंग. एक्चुअली आई एंड अप ईटिंग 2 pieces ऑफ स्वीट. ओके, फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, इट्स नॉट गोना हेल्प मी. तो मैंने बस एक ही चीज़ रियलाइज़ करी कि कुछ भी हो जाए, अब कितना भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा. अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक चीज़, ये एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है जो सबके साथ होता है और इसको टैकल कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप है रियलाइज़ करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, तो तभी उसको टैकल कर पाएंगे. तो अब जब मैंने रियलाइज़ कर लिया है तो आई ट्रस्ट माई सेल्फ 100%. whenever next time I fell into this, I meet this problem again, I will have the courage to fight it. And I will, definitely. Because this is one thing that stops me all the time. Now let's talk how the cycle works. First, something will happen in your life that makes you upset. Second, you will end up feeling an urge of comfort or releasing your stress. And maybe you want to be happy.
just that. And there will be an overwhelming urge to eat something, and most of the time it will be junk food. Burger, pizzas, fries, sweets, maybe alcohol. And after eating once, there's no limit. You don't know where to stop. Step 3 will be you don't know where to stop. That one bite or that one sip will make you eat more. And after hours of binging, then comes the guilt, self-pity. You feel sad about it. You're ashamed of yourself, which in turn makes you feel upset. And the cycle goes on and on and on. It's really not easy to fight this. Accepting this problem is the first step to fight it. क्योंकि उसी के बाद तो टैकल कर पाओगे ना कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को पता है मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ऑलरेडी मालूम होगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसी चीज़ों के सामने अटकूँगा या जब भी मैं ऐसी चीज़ फेस करूँगा, I will be well prepared. Accepting this problem is the key to tackle it. I accept that knowingly or unknowingly, I used to fulfill my emotional hunger, not my physical hunger. In fact, I promise myself that I won't do it further. And I feel this is a very important topic, and मैं इसके बारे में बहुत चीज़ें लाने वाला हूँ बहुत जल्द, धीरे धीरे करके। मैं अब क्योंकि मैं खुद ट्राई करूँगा पहले, और मैं वो चीज़ जो मेरे को सही लगेगी वही मैं आगे लाऊँगा, ताकि जिसको भी हेल्प चाहिए हो इससे वो ले सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, और आई वॉन्ट कि ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुँचे जिसको ये देखने की ज़रूरत है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रिलेट कर पाए इससे, चाहे उसको पता हो ना पता हो, बट ये हर एक के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब भी हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, चाहे वो जिम जाना हो या कुछ भी करना हो, ये एक प्रॉब्लम हमारी है जो हमें पीछे खींचती है। मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। अब धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ की ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है इसको निकाल के बाहर फेंकूँगा, और अपने वेट लॉस जर्नी में मेरे को आगे बढ़ना ही है, कैसे भी करके। आई विल नॉट गिव अप, और मैं आगे बढ़कर रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं अपना वेट कम करके ही रहूँगा। सो थैंक यू so much for watching this, and please do share this video. Bye bye.